नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आरबीआई ने 6.5% पर बरकरार रखी रेपो रेट, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। एसओयू का भरपूर विकास पर राजपीपला विकास से वंचित, रेलवे लाइन शुरू करने की मांग। वडोदरा के नवायार्ड में जीईबी ने उधेड़ दी बनी बनाई सड़क, संकलन के अभाव में सड़क खराब। अगर आप भी लोन की ईएमआई चुका रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 फरवरी से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। गुजरात के राजपीपला में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाकों में विकास जरूर हुआ है, लेकिन जिला के मुख्य मथक राजपीपला विकास से वंचित है। गुजरात की रजवाड़ी नगरी राजपीपला निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है। तब से यहाँ हजारों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का काफी विकास हो रहा है, लेकिन नर्मदा जिला के मुख्य मथक राजपीपला को विकास का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और निवासियों में रोष देखने मिल रहा है। યુનિટી બન્યા બાદ રોજ હજારોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાત લે છે, પરંતુ નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય વડું મથક રાજપીપળા હાલ વિકાસથી વંચિત છે તેવું વેપારીઓ કહી રહ્યા છે। ખાસ કરીને રાજપીપળા એ નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે। અહીંયા તમામ ઓફિસો અને કચેરીઓ આવેલી છે, પરંતુ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બન્યા બાદ વિકાસ રાજપીપળાથી દૂર જઈ રહ્યો છે તેમ લોકોને લાગી રહ્યું છે। રાજપીપળાથી અંકલેશ્વર રેલવે લાઇન શરૂ થઈ હતી, પરંતુ થોડા સમય ચાલુ રહ્યા બાદ આ રેલવે લાઇન બંધ થઈ જતા વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આપણી સાથે વેપારી છે, તેમની સાથે વાત કરીશું કે રેલવે લાઇન બંધ થવાથી કેટલા નુકસાન થયા છે। હા, માલવભાઈ, આપ ખાસ કરીને જે રેલવે લાઇન શરૂ થઈ હતી અને હાલ રેલવે લાઇન બંધ થઈ ગઈ છે, વેપારીઓને કેટલું નુકસાન છે અને રાજપીપળાને કેટલું નુકસાન છે? વેપારીઓએ વારંવાર છે ને રાજપીપળા રેલવે માટે રજૂઆત કરી હતી, ચાહે કાપડ એસોસિએશન હોય, કિરાણા એસોસિએશન હોય, વિવિધ વેપારી મંડળ હોય, દરેક રીતે દરેકે પોતપોતાની રીતે કલેક્ટરશ્રીને અને સરકારશ્રીને રજૂઆત કરી છે। છતાં પણ જાણે સરકાર લોલીપોપ આપે છે રાજપીપળાની જનતાને। હાલમાં પણ એ પરિસ્થિતિ ઊભીને ઊભી જ છે કે રાજપીપળા રેલવેને એ લોકોએ ટિકિટ બારી અહીંયા હતી એ પણ હવે ખસેડી છે, જે માત્ર ટિકિટ બુક કરાવીને પણ પોતાની અગવડતાને એ લોકો દૂર કરી શકતા હતા। હવે ટિકિટ બારી પણ એ લોકો કેવડિયા લઈ ગયા છે। બીજું કે અગાઉ વિધાનસભા પહેલાં પણ અમે વારંવાર રજૂઆત કરી હતી, 200 થી 250 કરોડ જેટલા ફાળવવામાં આવ્યા હતા રાજપીપળા રેલવે માટે કે અલગ અલગ ચેકપોસ્ટો જે છે એને ઓછી કરી દેવામાં આવે, જેથી કરી રાજપીપળા રેલવેની સ્પીડ વધે અને અહીંયાથી વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરિયાત વર્ગ જે લાભ લઈ રહ્યા છે રેલવેનો, એમાં એ લોકોને પણ અગવડતા ના પડે। ખાસ કરીને અન્ય એક વેપારી છે આપણી સાથે, કૌશલભાઈ, આપ કાપડ એસોસિએશનના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છો, વેપારી એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા છો। રાજપીપળામાં જે રેલવે લાઇન બંધ થઈ એનાથી કેટલું નુકસાન? નુકસાન તો ઘણું બધું છે, કેમ કે રાજપીપળા એ નર્મદા જિલ્લાનું વડું મથક છે, જ્યાં વર્લ્ડની મોટામાં મોટી પ્રતિમા આવેલી છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। અને રાજપીપળા એટલે કે નર્મદા જિલ્લાને ઇકો ટુરિઝમ ક્ષેત્ર તરીકે જાહેર કર્યું છે, ત્યારે રાજપીપળાનો કોઈ જાતનો વિકાસ નથી। નર્મદા જિલ્લાનો વિકાસ છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો, એમાં કોઈ સંશય નથી। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના લીધે નર્મદા જિલ્લાનો પૂરેપૂરો વિકાસ, જેનો લાભ રાજપીપળાને મળવો જોઈએ એ બિલકુલ મળતો નથી એના, અને હજુ પણ અહીંથી બાયપાસ રસ્તો પાડવામાં આવે છે, એટલે રાજપીપળા બિલકુલ સાઈડ ઉપર મુકાઈ જાય એમ છે। આ રેલવે ચાલુ કરવા માટે 2020થી કાપડ એસોસિએશન દ્વારા અમારા લોકો દ્વારા ખૂબ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। એમાં કલેક્ટરશ્રી, સાંસદ સભ્યશ્રી અને પીએમ મોદી સાહેબના કાર્યાલયમાં અમે એની લેખિત રજૂઆત મોકલેલી છે, તેમ છતાં આનું કોઈ નિરાકરણ આવતું નથી।
गुजरात के वडोदरा में 5 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क जीबी द्वारा खोद दिए जाने से सड़क बनाने में खर्च हुए लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा नवा यार्ड में 5 करोड़ की लागत से पंड्या होटल से फतेहगंज पुलिस थाने तक हाल ही में नई सड़क बनाई गई थी, जिसमें जीबी द्वारा खोदकर लाइन डालने की शुरुआत की गई है, जिसका कांग्रेस के नगर सेवक जहां भरवाड़ और हरीश पटेल द्वारा विरोध किया गया। અત્યારે આ પંડ્યા બ્રિજથી છાણી જગતનાકા સુધી જેટકો કંપનીના કંઈ કેબલનું અંડરગ્રાઉન્ડ કામ ચાલુ છે। આ રોડ અમે વોર્ડ નંબર 1ના તમામ કોર્પોરેટરની લડત બાદ મંજૂર કરાવીને કામ કરવામાં આવ્યું છે। હજુ રોડ બને 1 થી 1.5 મહિનો થયો છે ને એની અંદર આ રોડની ઉપર ખોદકામ ચાલુ થયું છે। રોડ પર ખોદકામ થવાથી રોડની સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ જશે। ખરેખર જે અધિકારીએ આવી પરમિશન આપી છે એની ઉપર તાત્કાલિક ધોરણે એક્શન લેવામાં, કારણ કે રોડના ટેન્ડરમાં નિયમ હોય છે કે જે નવો રોડ બને એને 5 વર્ષ સુધી વોરંટીની અંદર કોઈપણ જગ્યાએ ખોદકામ થવું ના જોઈએ, એનું ધ્યાન રાખવું। કોઈ ઇમરજન્સી સુવિધા ના હોય તો ત્યાં સુધી ખોદકામની મંજૂરી ના મળવી જોઈએ। તો જે અધિકારી આવી મંજૂરી આપી છે એની ઉપર તાત્કાલિક ધોરણે એક્શન લેવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। વડોદરા શહેરના અમારા વોર્ડ નંબર 1માં શાસ્ત્રી બ્રિજ એટલે કે પંડ્યા હોટલ બ્રિજથી લઈ અને ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશન સુધીનો આ રોડ છે। માત્ર 1 જ મહિના પહેલાં આ રોડ બન્યો છે અને 1 જ મહિના પહેલાં રોડ બન્યા પછી તમે જુઓ કે જીઈબી વાળાએ આ રોડ પર ખાડા ખોદવાનું શરૂ કરી દીધું છે। જીઈબી વાળા કંઈક લાઈન નાખી રહ્યા છે। એમનું એવું કહેવું છે કે કોર્પોરેશન અમને પરમિશન આપી છે। તો પછી વડોદરા શહેરમાં વહીવટ કરતા કોર્પોરેશનના કહેવાતા એન્જિનિયરો શું એમને ભાન નથી પડતું કે ભાઈ આ વડોદરા શહેરમાં રોડ 5 કરોડના ખર્ચે જો બન્યો હોય તો એને તાત્કાલિક ખોદી ના નાખવો જોઈએ। આ એમની મિસકોમ્યુનિકેશનના કારણે અત્યારે આ જીઈબી વાળાએ રોડ ખોદી નાખ્યો છે। જે પણ અધિકારીએ આ રોડ ખોદવાની પરમિશન આપી હોય એની પર તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ, એની પર પગલાં લેવા જોઈએ અને એને આ જવાબદારીમાંથી છૂટા કરી દેવા જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। મુખ્યમંત્રી શ્રી જો એવું કહેતા હોય, એમને કટાક્ષ કર્યો હોય જ્યારે કે ભાઈ આપણે ત્યાં એવી સિસ્ટમ પડી ગઈ છે કે રોડ બનાવ્યા પછી ત્યાં ડ્રેનેજ પાણીની લાઈનો નાખી, અન્ય લાઈનો નાખી અને રોડ ખોદી નાખવામાં આવે છે, તો એવું ન થવું જોઈએ। એના બદલે જીવતું જાગતું ઉદાહરણ તમે જુઓ કે 5 કરોડના ખર્ચે રોડ બન્યા પછી તાત્કાલિક 1 મહિનામાં તેને ખોદી નાખવા માટે આ જીઈબી વાળા ખાડા ખોદી નાખ્યા છે, લાઈન નાખી રહ્યા છે। એટલે આ બહુ દુઃખદ બાબત કહેવાય। જવાબદાર अधिकारी સામે પગલાં લેવાય એવી મારી માંગણી છે। वडोदरा को लाखों रुपयों की ग्रांट देते वक्त खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि सड़क बनाने में हमेशा संकलन रखें। ऐसा न हो कि सड़क बनाने के कुछ ही वक्त बाद दूसरा विभाग आकर उसे उधेड़ दे। फिर भी वडोदरा महानगर पालिका लापरवाही के उम्दा नमूने पेश कर रहा है और बनी बनाई सड़क संकलन के अभाव में बार बार खोद दी जाती है, जिसे फिर से बनाने में ठेकेदार और अधिकारियों को फिर से लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है। गुजरात के वडोदरा की वाघोड़िया विधानसभा में फिर एक बार चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में यहां से दावेदारी के लिए मधु श्रीवास्तव ने भी अपना मजबूत दावा पेश किया है। एक और देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, वहीं गुजरात के वडोदरा शहर में लोकसभा चुनाव का माहौल तो है ही, लेकिन यहाँ वाघोड़िया विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के भी आसार नजर आ रहे हैं। निर्दलीय के रूप में जीत कर आए धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही वाघोड़िया की सीट पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं और वाघोड़िया की विधानसभा सीट हमेशा ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए और निर्दलीयों के रूप में भी। यहाँ जो चुनाव हुए हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फिर अगर एक बार चुनाव होते हैं तो इसका समीकरण भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहीं खड़ी हूँ और वाघोड़िया विधानसभा में सालों तक विधायक रहे पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव हमारे साथ है। मधु भाई, फिर एक बार वाघोड़िया आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हनुमान जी की कृपा आप पर फिर से बरस रही, फिर एक बार आपको मौका मिल रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने का। मेरे को महसूस तो ऐसा ही लगता है कि हमने भक्ति करी है और भक्ति करते आए हैं, फिर भी सामने वाले जो भी उम्मीदवार थे वो कांग्रेस भाजपा को हरा कर जीते हुए थे। उनको किसने ऐसी बुद्धि दी कि क्या उनका काम किया है, क्या किसने उनको पढ़ाया लिखाया, और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ने राजीनामा दे दिया है उनने। और राजीनामा देने के बाद में अब फिर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो फिर बजरंगबली दादा देखेंगे या वाघोड़िया 136 विस्तार की प्रजा देखेगी। 1 साल के अंदर कितना उन्होंने काम किया
और 30 साल में मैंने जो काम किया है, रोड, पानी, रास्ता, बिजली, आवास के मकान, शिक्षण क्षेत्र, सभी बात के नात जात भेदभाव अगर कोई भी आया हुआ है उसका काम करने का मैंने प्रयास करता रहा हूँ 30 साल तक। और अभी भी मैंने वचन दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहा, मेरी सांस में सांस रही, तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा और सेवा करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। वही मोबाइल नंबर है, पहले में नंबर था वही, आज भी वही नंबर हूँ। मैं लोगों के जैसे नंबर नहीं बदलता हूँ या लोगों के जैसा कोने में घोर चढ़ाता नहीं हूँ, चोखा बोलने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुदरती बजरंगबली का आशीर्वाद हो या मेरी प्रजा का आशीर्वाद हो या कुछ भी आशीर्वाद है, इसलिए फिर चुनाव आया है। फिर चुनाव आया है तो मैं 30 साल के अंदर जो काम किया है वो 30 साल का काम करेला याद दिलाऊंगा लोगों को कि मैंने निस्वार्थ आपका काम किया है। न किसी को जातिवाद लड़ाया है, न कोई गांव के अंदर भाग पाड़े हैं, न किसी माँ बहन के ऊपर नज़र उठाई है। मैंने सबका सच्चा काम करने का प्रयास किया है। मधु भाई, विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे कि किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? विधानसभा तो लड़ने वाला ही हूँ, क्योंकि मैदान तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, और लड़ूंगा और जीतूंगा या जिताऊंगा या मेरे लड़के को लड़ाऊंगा या लड़की को लड़ाऊंगा या मेरे कार्यकर्ता को भी लड़ाऊंगा। तो सही, लड़ूंगा या लड़ाऊंगा, पर जिताऊंगा भी, ये मेरा फर्ज है। और कहाँ से लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर पिछले दिनों आपने कांग्रेस के नेता से भी मुलाकात की है? मेरा तो सबके साथ संबंध है। मैं तो पहले भी निर्दलीय चुनाव जीता था और भाजपा ने मेरे को टिकट दिया था। 5 दफे भाजपा ने टिकट मेरे को दिया और 5 दफे भाजपा का सीट लाया। ये 6ठी दफे मेरे को टिकट नहीं दिया उन लोगों ने, मैं निर्दलीय लड़ा। तो अब भाजपा नहीं आया, वहाँ निर्दलीय आया। तो वाघोड़िया 136 मत विस्तार के अंदर प्रजा और मतदार जानते काम करने वाला कौन है और कौन अच्छा व्यक्ति है, उसको चुनेंगे, ये मेरे को आशा है। पिछली बार वाघोड़िया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जीत मिली और निर्दलियों को मिली, और इस बार अब फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से कोई लड़ेगा, कोई कांग्रेस से लड़ेगा और निर्दलीय भी लड़ेंगे। मधु श्रीवास्तव भी उम्मीदवारी करने का दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं या कांग्रेस से लड़ते हैं, भाजपा से लड़ते हैं, तो फिर एक बार विधानसभा, वाघोड़िया विधानसभा की जनता आपको पसंद करेगी? मेरे को वाघोड़िया की एक एक गाँव का रास्ता गली मालूम है कि गाँव के अंदर पेवर ब्लॉक करे, गांव के अंदर सड़क बनाई है, गांव का बच्चा एक एक स्कूल के अंदर बच्चे भी जानते हैं। मैंने वाघोड़िया मत विस्तार 36 जो बड़ौदा तालुका और वाघोड़िया तालुका आता है, दोनों तालुका होते हुए भी मैंने सभी 1 से 7 दौरान के पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में दफ्तर दिए थे कि शिक्षण क्षेत्र आगे बढ़ाओ। शिक्षण क्षेत्र जरूर है, टेक्नोलॉजी का जब बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षण क्षेत्र के लिए भी मैंने प्रयत्न किया है। मतलब आप कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, न भाजपा में नहीं हूँ। मैं आज निर्दलीय हूँ और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला हूँ। चाहे मेरे को बीजेपी टिकट है तो बीजेपी से लड़ लूँगा, चाहे कांग्रेस टिकट है तो कांग्रेस से लड़ लूँगा। पहला लड़ लूँगा, निर्दलीय लड़ना न की। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, क्या हम मधु भाई को लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं? अभी तो कुदरती विधायक का आया है, तो विधायक के लिए देखो ठीक रहेगा, फिर आते देखेंगे संसद का चुनाव किस तरह लड़ना। क्या वाघोड़िया में और क्या काम है जो आप विधायक बनकर करना चाहेंगे वाघोड़िया की जनता के लिए? काफ़ी काम बाकी है अभी। कई स्कूलों का काम बाकी है, कहीं रोडों का काम बाकी है, और गैस कनेक्शन मैंने वाघोड़िया के अंदर चालू करा है, पोपर वाघोड़िया में। और वाघोड़िया के तालुका के गाँव में गैस कनेक्शन घर करने का वो काम बाकी है। नर्मदा का पानी पहुंचाया है, अमुक जगह नर्मदा का पानी नहीं पहुंचा है, वो नर्मदा का पानी पहुंचाना है। अमुक जगह रोड नहीं है, रोड करना है। ये काम करना है। और लोगों को रोजी रोटी, जिसको रोजी रोटी नहीं मिलती उसको नौकरी दिलाने का प्रयास करना है, और कायम नौकरी हो वो प्रयास करना है। आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार वाघोड़िया से जनता नकार देगी? मेरे को नहीं नकारेंगे, जो बीजेपी से लड़ेंगे तो नहीं नकारेंगे, और जो दूसरे को लड़ाएंगे तो 100% वाघोड़िया की प्रजा नकारेगी।
भारतीय जनता पार्टी से अगर मधु श्रीवास्तव को टिकट मिलता है तो वो कह रहे तो मैं ज़रूर जीत सकता हूं, और अगर निर्दलीय उम्मीदवारी करते हैं, दावेदारी करते हैं, तब भी जीत की उम्मीद मधु श्रीवास्तव लगा रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और विधानसभा के चुनाव का जैसे ही ऐलान होता है हम पूरा फोकस रखेंगे विधानसभा के ये जो चुनाव है उस पर भी, क्योंकि यहाँ की जनता है वो हमेशा निर्दलियों को पसंद करती आई है और काम करने वाले लोगों को पसंद करती आई है। भाजपा की टिकट से भी कई बार मधुभाई यहाँ जीते हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा अगर यहाँ विधानसभा का चुनाव जब भी डिक्लेयर होता है। पूरी नज़र बनी रहेगी और इसके लिए VNM ज़रूर देखते रहे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन शहर को सुंदर बनाने की कोशिश भरपूर हो रही है, जिस पर सवाल उठे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा शहर को सुंदर दिखाने के लिए इन दिनों जगह जगह पेंटिंग की जा रही है। वडोदरा के अटल ब्रिज और ब्रिज की दीवारों पर कलर कर उसे पेंटिंग से सुशोभित किया जा रहा है, जिससे वडोदरा शहर ऊपरी तौर पर खूबसूरत दिखे। लेकिन हकीकत ये है कि वडोदरा शहर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग जी रहे हैं। ऐसे में लोगों को सुंदरता से पहले प्राथमिक सुविधाएं देने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने की है। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી તરફ જઈ રહ્યું છે તેવું બતાવવા માટે થનગની રહેલા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ વડોદરા શહેરના વિવિધ ઓવરબ્રિજ, વિવિધ જગ્યાઓ પર અનેક જાતના કલરિંગ કામો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ડિઝાઇનો બનાવવામાં આવી રહી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટીલના થાંભલા નાના નાના લગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સ્માર્ટ સિટી બતાવવાનો પ્રયાસ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આ જાડી ચામડીના સત્તાધીશો, જાડી ચામડીના અધિકારીઓ બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। પરંતુ સ્માર્ટ સિટીનો સીધો મતલબ એ છે કે તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ વડોદરા શહેરના નાગરિકને મળે ત્યારે સ્માર્ટ સિટી કહેવાય। પીવાનું ચોખ્ખું પાણી મળે, વડોદરા શહેરમાં ગટારો ના ઉભરાવી જોઈએ, વડોદરા શહેરમાં રોડ રસ્તા લખોટી ગગડે તેવા હોવા જોઈએ, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ વડોદરા શહેરનો નાગરિક સુખી હોવો જોઈએ, મચ્છરજન્ય રોગચાળો ફેલાય તેવી જગ્યાઓ ના આવવી જોઈએ, વડોદરા શહેરમાં સ્વચ્છતા જળવાવી જોઈએ। આ તમામ જ્યારે સુવિધાઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અધિકારીઓ આપે તેને સ્માર્ટ સિટી કહેવાય। પરંતુ હાલમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડોદરા શહેરને ફૂલ ગુલાબી ચિત્ર બતાવવામાં આવે છે, કલરિંગ ચિત્ર ઊભા કરી દેવામાં આવે છે, રાત્રે રોશની ઊભી કરવામાં આવી રહી છે। આને સ્માર્ટ સિટી નથી કહેવાતી। સ્માર્ટ સિટી પ્રાથમિક સુવિધાઓ આપવી પડે। જેમ सूरत ले लो, इंदर ले लो, स्वच्छतानी बाबतमां 1 नंबर है, त्यारे वडोदरा शहरनो नंबर पाछो जतो जाय छे। तो स्मार्ट सिटी क्यांथी कहेवाय? पीवानुं पाणी गंदू मळी रह्युं छे, ड्रेनेजो उभराई रही छे। आ तमाम बाबतोमां जो वडोदरा महानगरपालिका ऊणुं उतर्युं छे अने खाली फूल गुलाबी चित्रो बतावीने, दृश्यो ऊभा करीने वडोदरा शहरने स्मार्ट सिटीनो प्रयास बतावવાનો प्रयास कर्यो छे, बहु ज गंभीर बाबत छे। तमाम प्राथमिक सुविधा आपो अने स्मार्ट सिटी बनावो तेवी अमारी मांग छे। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के राजपारडी में चैतर वसावा की उपस्थिति में आपकी संकलन मीटिंग का आयोजन किया गया। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच भरूच में भी आम आदमी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं,
जिसके चलते भरूच के झगड़िया तालुका के राजपारडी स्थित आशीर्वाद होटल में आम आदमी पार्टी की संकलन बैठक का आयोजन आप विधायक चैतर वसावा की उपस्थिति में किया गया, जिसमें उन्होंने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और चुनाव की तैयारियां कैसे करनी है इसकी जानकारी मीटिंग में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को दी। वहीं कार्यक्रम में मनोज सोरठिया, जयराज सिंह, पीयूष पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप विधायक और आदिवासी अग्रणी चैतर वसावा कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर बाहर आए हैं। उनकी जमानत होने पर उनके समर्थकों ने भारी उत्साह से उनका स्वागत किया था। अब वो अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाने और चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज भरूच लोकसभा ने झगड़िया विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर सम्मेलन और संकलन की मीटिंग थी। एमां झगड़िया तालुकाना नेत्रंग और वालिया तालुकाना मोटी संख्या में युवाओं, आगेवानों और वडीलों अहीं उपस्थित रह्या छे। आवनारी 2024 लोकसभा में भरूच लोकसभा पर कई रीतना उतराय अने कई रीतनी रणनीति बनाववानी ए रीतनी विशेष चर्चाओ अहींया थई छे। अने जे पण लोकोना जे प्रश्नो छे, अहीं नर्मदापुरमां घणुं नुकसान थयुं छे छतांय घणा लोकोने वळतर नथी मळ्युं। गुजरात के वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने आज MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी की विजिट की। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत कला को काफी पसंद करते हैं। आज पुलिस कमिश्नर वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में विजिट के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी को देखा और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के म्यूजियम की भी विजिट की। इस मौके पर MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। आज मैं और वाइस चांसलर श्रीवास्तव साहब यूनिवर्सिटी का कुछ डिपार्टमेंट्स में विजिट किए। जो फाइन आर्ट्स भी हम लोगों ने देखा, मेन बिल्डिंग देखा। तो अभी जो आर्ट्स फैकल्टी का ऐतिहासिक जो प्रेमानंद अपना हॉल है उसको भी देखने आए। एक अद्भुत अपना एक स्ट्रक्चर है जिसका रिस्टोरेशन काम चल रहा है और हम स्टूडेंट यहाँ MS के सारे स्टूडेंट पहले भी जा चुके हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत गौरवशाली ये एक पहचान भी है अपनी, और बड़ौदा की भी पहचान है। अपना ये जो बिल्डिंग है आइकॉनिक बिल्डिंग है। तो बस हम लोग घूमने आए, अलग अलग दूसरे फैकल्टीज में भी जाएंगे और देखेंगे। और दूसरा कैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और MS यूनिवर्सिटी में कैसे अच्छा संकलन रह सके, बेसिकली उस पर्पज से आज हम लोग मीटिंग थे। भी उसी के साथ साथ हम लोग अपना ये विजिट्स ले रहे हैं जो है कि आने वाले समय में और अपने बच्चों को जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको और इतनी अच्छी सुविधाएं दे सके और डिपार्टमेंट की तरफ से और कैसे उनको हेल्पफुल हो सके, उसके बारे में हम लोग का ये विजिट है। आप सभी को मालूम है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एक विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है जो कि एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में भी जानी जाती है। इसकी प्राचीनता के लिए ये ज़्यादा जानी जाती है। इस विषय पर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सहयोग से जो काम हेरिटेज रिस्टोरेशन का चल रहा है, इस बिल्डिंग के रिस्टोरेशन का चल रहा है, उसी के तहत हम लोग ज़रा इस बिल्डिंग को देखने के लिए आए कि काम किस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि इसको एक सीमित अवधि में पूरा भी करना है। गुजरात के प्रसिद्ध कमाटी बाग में बच्चों में आकर्षण जगाने के लिए एक अद्भुत स्कल्पचर लगाया गया है। वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर के लोगों को कमाटी बाग की अद्भुत भेंट दी है, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई सैर सपाटे के लिए जाता है। कमाटी बाग का आकर्षण बढ़ाने के लिए यहां 700 किलो के हाथी का स्कल्पचर लगाया गया है। महाराष्ट्र के अकोला के उत्पादक ने वडोदरा के लिए हाथी का ये खास स्कल्पचर तैयार किया है, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लगता है। हाल ही में कमाटी बाग में लाए गए स्टैच्यू को देखने के लिए सैलानी खास कमाटी बाग पहुंच रहे हैं और हाथी के साथ फोटो और सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। गुजरात के भावनगर में आंगनवाड़ी की इमारत के अभाव में छोटे छोटे बच्चे दुकानों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर है गुजरात मॉडल की, जहां बच्चे स्कूल के बजाय दुकानों में पढ़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात के भावनगर के शिवनगर इलाके में 191 नंबर की आंगनवाड़ी में 50 जितने छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें दुकान में ही पढ़ाई कराई जाती है और यहाँ तक कि ये दुकानें भी काफी खस्ता हाल है। हाल ही में वडोदरा में छोटे बच्चों के साथ घटी दुर्घटना में 12 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है। उसके बावजूद भी भावनगर प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस मामले की शिकायत बार बार भावनगर महानगर पालिका से भी की गई है, लेकिन कोई सुविधा नहीं किए जाने पर अभिभावकों ने खुद ही वीडियो बनाकर वायरल किए हैं।
શિવનગર વિસ્તારમાં આવેલી શિવનગર 151 આંગણવાડીમાં તે નાના ભૂલકાઓને આપ જોઈ રહ્યા છો. અહીંયા કેટલા લગભગ 50 જેટલા ભૂલકાઓ અહીંયા છે. પણ એ આંગણવાડી નથી, દુકાન છે. દુકાનને લીધે બાળકોનું ભવિષ્ય જેને કહેવાય, ગમે ત્યારે શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુમાં બાળકો અહીંયા ઠંડી હોય, વરસાદનું વાતાવરણ હોય કે ગરમી હોય, ત્યાં પતરા નીચે આ એક પતરાવાળી દુકાનમાં અહીંયા જેને કહેવાય ને રમે છે અને ભણે છે. પણ આ લોકોની આંગણવાડીના સંચાલકે ધારાસભ્ય સુધી પણ આ વાત પહોંચાડી છે. અહીંના વિસ્તારના નગરસેવકોને પણ કીધું છે. ત્યારે એમને પણ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમે મકાન ગોતો, જવાબદારી તમારી છે. સંચાલક તરીકે આંગણવાડી વિસ્તાર એ સંભાળે છે તો એનો મતલબ એવો થાય કે બધું એને જ કરવાનું હોય. આ સંસ્થાની જવાબદારી ખાલી બાળકોને ભણાવવાની છે. પણ અહીંયા હું તો એવું કહું કે શિવનગર વિસ્તાર ત્રંબકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે અને ત્યાં આગળ બાજુમાં મેદાન પણ વિસ્તારમાં છે. ત્યારે આ બાળકો શાંતિથી ભણી શકે એ માટે નાનો અમથું એક આંગણવાડી અહીંયા આગળ જો બને, વિસ્તારની પણ એક આ રહેવાસીઓની પણ એવી માંગ છે કે અહીંયા અમારે બાળકો માટે આંગણવાડી બને. તો મારી તો એક રજૂઆત છે કે આંગણવાડી આ સરસ મજાની અહીંયા ત્રંબકેશ્વર મહાદેવનું પટાંગણ છે, ત્યાં આ લોકો વિસ્તારની પણ માંગ છે અને મારી પણ માંગ છે કે આ બાળકો શાંતિથી એક સંકુલ બને અને એમાં बालको भणे एवी मारी मांग छे। भावनगर से ही विधायक जीतू वाघानी सालों तक शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उनके ही होम टाउन में छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए। शिक्षा के पीछे गुजरात सरकार करोड़ों रुपए का खर्च करती है, लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें गुजरात के शिक्षा विभाग को शर्मसार करती हैं। गुजरात के वडोदरा में आफताबे मौसीकी के रूप से जाने जाते स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान की जन्म जयंती के मौके पर उनकी मजार पर चादर चढ़ाई गई। वडोदरा के कारेली बाग में बहुचराजी रोड पर आफताबे मौसीकी स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान की मजार है। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा मजार पर चादर चढ़ाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सन 1880 में जन्मे उस्ताद फयाज खान ने मुश्किल से संगीत की साधना की थी और संगीत की साधना के बाद उन्होंने अपनी गायकी से बड़े बड़े संगीतकारों को मात कर दिया था। आज भी वडोदरा महानगर पालिका उनकी जन्म जयंती पर हर साल उन्हें याद करता है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, विपक्ष नेता अमीरावत समेत के नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। फयाज अली खान जे संगीतकार 1880 में सफदर हुसैन खाना त्या एमनो जन्म थयो हतो। जे संगीतनी दुनियामां एक एवं नाम छे जे कही शकाय के अत्यारना पण गायको जे पण होय अथवा जे संगीतकार छे, संगीतनी दुनियामां जे लोको अत्यारे साधना करी रह्या छे एमना माटे पण एक पथदर्शक प्रेरणादायी अस्तित्व कही शकाय। एमना पिता सफदर हुसैन खान જ્યારે માત્ર 4 વર્ષની ઉંમરમાં ફયાઝ અલી ખાનની 4 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે તેઓ અવસાન પામ્યા હતા અને તે પોતે રાજગવૈયા તરીકે રાજવી પરિવારોમાં રાજગવૈયા તરીકે સાધના સંગીતની સાધના કરતા હતા। તેમના માતા પણ રાજ પરિવારમાં રાજગવૈયા તરીકે ખૂબ પ્રખ્યાત હતા। માત્ર 4 વર્ષની તેમની ઉંમરે તેમના પિતાનું અવસાન થતાં એમના માતા સાથે તેઓ પોતાના મોસાળમાં ગુલામ અલી ખાના ત્યાં रही अने मोटा थया। 5 वर्षनी उंमरथी तेमनी आकरामां आकरी संगीत साधनानी तपस्या शरू थई। मात्र 5 वर्षनी उंमरथी शरू करायेली आ तालीमना 10 वर्षमां तो तेओ दुनियाना कोईपण संगीतकारने पाछळ पाड़ी दे तेवी सिद्धि हासिल करी हती। आफताबे मौसीकी स्वर्गीय उस्ताद फयाज खान की जन्म जयंती पर MS यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स के हेड डॉक्टर राजेश केलकर और फैकल्टी के छात्रों ने भी उस्ताद की मजार पर चादर चढ़ाकर खूबसूरत गीत संगीत की प्रस्तुति दी। आफताबे मौसीकी उस्ताद फयाज खान साहेब गई शताब्दीना टोचना कलाकार हता। भारतीय शास्त्रीय संगीतनु संस्थागत शिक्षा प्रणाली में जे कई करिक्युलम वगैरह बन्यु, पाठ्यपुस्तकों बन्या, एमां एमनुं योगदान विशेष है। सुप्रसिद्ध गायक, रचनाकार अने गुरु तरीके एमनी ख्याति हती अने आधुनिक समयनी हूँ बात करूँ तो जेटला पण भारत रत्न प्राप्त करेला कलाकार छे ए एमने पोताना आदर्श तरीके मानता था।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।